So, very good morning, friends. We are into this canal lecture, wherein today we will be studying the canal alignment and a very nice concept of balancing depth of the canal and balancing depth contour. Okay, just for this purpose, I need your help in understanding the contours, which I tried to explain you in our last lecture. So, the based on the canal alignment. I will again refresh you with the meaning of the alignment. Alignment means laying the canal because it is bit a specialized type of the job wherein canal is to be laid over the ground with the help of the earlier surveys, the contours plotted on the sheet, on the drawing sheet or on the village map sheet, and based on that study and knowing the canal bed level, we can further move into this very interesting part. Excuse me, which is regarding the canal alignment laying, you can say. So based on the canal alignment we will understand slowly how the canal is aligned. कैनाल को हम कैसे शीट के ऊपर पहले आंकते हैं, हिंदी में या मराठी में बोलेंगे तो उसको शीट के ऊपर उसको पेंसिल से और इससे ड्रॉ करते हैं। लेकिन वो ड्रॉ भी करने के लिए हमें कुछ दो चीजों की बहुत जरूरी है। द फर्स्ट इज द कंटूर मैप ऑफ दैट एरिया in which the canal is to be passed. Okay, because the canal has to supply the irrigation water to the land. Okay, and that land which is to be supplied the irrigation water is called as the command area. Okay, I just bit a revision of the words, and let us not discuss here about the culturable command area. So that is another factor, but command area is very important, to which the canal supplies the water. Now the canal takes off from the dam, and the dam is constructed across the river, and generally it is in hilly area. So when this canal is to be taken off from the dam or the reservoir, it starts from the hilly area. Okay, because on both side of the or on both banks of the river, uh, generally the location of the canal of the dam is such that it's द डैम जो हमने देखा था इसके पहले कि डैम को कैसे साइट सिलेक्ट की जाए, तो जहां पे हिली एरिया रहता है और उसके बीच में से नदी बहती है, तो वो वी जॉइन दैट टू हिल्स विच आर ऑन द बोथ बैंक्स ऑफ द रिवर सो दैट द लेंथ ऑफ द डैम शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल, है ना। ये हो गई पहली बात। अब ये जो कैनाल निकलता है डैम से, ये कैनाल की जो मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था कैनाल बेड लेवल, ये कैनाल बेड लेवल है ना, कैनाल की सबसे लोएस्ट लेवल। ट्रेपेजॉइडल कैनाल रहता है तो कैनाल का सबसे लोएस्ट लेवल जो है दैट इज कॉल्ड एज द कैनाल बेड लेवल, which plays a very important role till the canal ends and also from the canal starts. So that bed level is fixed based on the डैम्स लोएस्ट लेवल, है ना। डैम की या रिजर्वायर की जो लोएस्ट लेवल है वाटर की, कौन सी रहती है वो एमडीडीएल करके हमने पढ़ा था, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन लेवल, है ना। वैसे तो डैम में रिवर बेड लेवल सबसे लोएस्ट लेवल है, लेकिन वी डोंट अलाउ द वाटर टू बी टेकन फ्रॉम द डैम अप टू द रिवर बेड लेवल, है ना। वो हमने थोड़ा सा प्लीज रिकलेक्ट टू द यूनिट नंबर 1 and 2 which were regarding the storage zones in the reservoir or the dam. So the canal bed level of the canal which is taking off or which is off taking, and I am using lot of the words, so try to understand those words. Which is taking off or which is off taking from the dam, that canal bed level depends on the maximum drawdown level of the dam of the reservoir.
सो इट इज इक्वल टू MDDL, यू कैन से मैक्सिमम ड्रॉडाउन लेवल जो रहती है डैम की, तो वो कैनाल बेड लेवल रहती है ना. नाउ कैनाल हैज टू सप्लाई द वाटर with gravity, so naturally canal needs to be provided the slope. तो जैसे जैसे कैनाल आगे आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे वो कैनाल का स्लोप देने के कारण जो कैनाल बेड लेवल पहले डैम से MDDL में जो कैनाल बेड लेवल थी, वो कैनाल बेड लेवल आगे आगे में क्या होती जाएगी, वो कैनाल बेड लेवल, दैट बेड लेवल विल गो ऑन इंक्रीजिंग, है ना. जैसे यहाँ पे समझो समझो 240 है, so the canal bed level as it moves forward, increasing means actually it is decreasing. यानी यहाँ पे 240 मीटर की कैनाल बेड लेवल है and when it optics from the dam, then after some 4 to 5 or 10 kilometers या 100 मीटर पे भी there should be fall in canal bed level, then and only then the water will flow from the dam to the command area, है ना. थोड़ा ये समझते जाइए, ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है आगे का समझने के लिए. सो कैनाल नीड्स टू बी प्रोवाइडेड विद द स्लोप, एंड दैट कैनाल बेड लेवल of all that sloping canal along its whole length will depend on two things. First is the canal bed level uptaking from the dam, that is MDDL, as well as the slope of the canal, है ना. कैनाल का ग्रेडियंट क्या है, 1 in 10,000 है, 1 in 4,000 है, उस हिसाब से कैनाल बेड लेवल धीरे धीरे कम होते जाएगी. जैसे यहाँ पे 240 है और समझो हमारा कैनाल 1 in 1,000 का स्लोप का है, मीन्स 1 मीटर फॉल इन 1,000 मीटर, ऐसा उसका मतलब होता है, समझ लीजिए. where we denote the slope by 1 in 1,000 or 1 in 2,000, 1 in 3,000, 4,000, 5,000, 10,000. जैसे जैसे कैनाल के स्लोप की वैल्यू बढ़ती है तो वैसे वैसे कैनाल फ्लैटर होते जाता है. तो 1 in 1,000 का हमारे समझने के लिए हम समझ लेते हैं कैनाल हैज द स्लोप ऑफ 1 in 1,000. इट इज रिटर्न 1 और 1 डिवाइडेड बाय 1,000 ऐसा भी बोलते हैं. तो उसका मतलब होता है कि 1,000 मीटर जब डैम कैनाल आगे जाता है तब उसके स्लोप में 1 मीटर की घटौती होती है. मीन्स यहाँ पे 240 का स्लोप है डैम के पास में, तो 1 किलोमीटर या 1,000 मीटर के बाद में द लेवल ऑफ द कैनाल विल बी 239. If it is 240 at the beginning, after 1 kilometer it will be 239 because the slope is 1 in 1,000. ठीक है, इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं. 2 in 1,000, नो 2 तो नहीं बताते, 1 in 2,000, 1 in 3,000, 1 in 4,000, इस हिसाब से बताते हैं. 1 is the fall in slope and 1,000 or 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 is the horizontal distance. So this is very important because the canal has now the two things you must have understood. The canal, what is the importance of canal bed level, and with reference to this canal bed level, canal की जो bed level है, जैसे जैसे canal आगे जाता है तो कैनाल को उतार तो देना ही पड़ेगा, तो ही फ्लो होगा ना कैनाल में से पानी का. तो बेड लेवल कमती कमती कम कम होते जाती है ना. बहुत हम इसलिए कैनाल बहुत फ्लैट रखते हैं एज फार एज पॉसिबल. व्हाई द कैनाल इज टू बी केप्ट फ्लैट? नाउ अंडरस्टैंड द नेक्स्ट थिंग. बिकॉज कैनाल बेड लेवल के नीचे की लेवल जो है, understand very carefully that the level which is lower than the canal bed level, only to that area the canal can supply water by gravity, है ना. कैनाल से जो खेती को हमें पानी देना है, वो खेती की भी लेवल, ग्राउंड लेवल जो है, ये कैनाल बेड लेवल से नीचे रहनी चाहिए. क्यों रहनी चाहिए? बिकॉज देन एंड ओनली देन द वाटर कैन फ्लो फ्रॉम कैनाल टू द कमांड एरिया. Okay, try to understand bit fast but in short. So that is the thing expected from the canal. So the canal has therefore, based on these 2-3 things, first is the canal bed level at the beginning, the canal slope, the gradient of the canal,
and the levels of the command area must always be below the canal bed level from different locations. जहां जहां कैनाल आगे जा रहा है उसके नीचे ही हमारा कमांड एरिया रहना चाहिए. इस हिसाब से द कैनाल अलाइनमेंट, द कैनाल इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू कंटूर कैनाल, वाटरशेड कैनाल और साइड स्लोप कैनाल. अभी ये सब समझते जाते हैं. जैसे ये स्केच आपको दिख रहा है, द कैनाल इज टेकन आउट फ्रॉम द डैम ऑन द राइट साइड, है ना, ये रिवर बताई है. एंड द कंटूर्स यस्टरडे आई एक्सप्लेन्ड यू, when the concave contours with the falling levels are there. concave contours with the falling level यानी 100, 98 से लेके तो 86, all the contours are the concave. अंदर साइड में concave है, तो there it shows the ground is falling and valley type ground, and therefore the river is flowing through it. ठीक है. Today I will allow the 15-minute lates. ये दिस डिस्टर्ब्स द क्लास. बाकी मुझे कोई अपने लिए कोई गुस्सा नहीं. ये ब्रेक हो जाता है फिर आपको बताते बताते. तो ये कैनाल ये डैम से जब निकलता है तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द हिल एरिया. तो हिल एरिया के कंटूर जैसे ये कैनाल शुरू में आपको मेन कैनाल दिख रहा है, सो इट इज क्रॉसिंग द कंटूर्स ऑफ द हिल एरिया. हिल एरिया के कंटूर क्रॉस कर रहा है, यानी क्या है, वो हिल एरिया में से जा रहा है, हिली एरिया में से. तो ये कंटूर कैनाल जो रहता है, वे वी अलाइन द कैनाल, या वो कैनाल को हम ऐसे बिछाते हैं कि इट फॉलोज सर्टन कंटूर, मीन्स इट फॉलोज सर्टन ग्राउंड लेवल्स, सो दैट इट शुड कमांड मैक्सिमम एग्रीकल्चरल एरिया. ये कंटूर कैनाल जो रहता है ये जनरली हम ऐसा प्रोवाइड करते हैं कि ये एखादे ग्राउंड के कंटूर को फॉलो करता है, एक ही कंटूर को नहीं कर सकता हो, है ना. जैसे समझो 100 का कंटूर है, तो ये 100 कंटूर से जाते जाते धीरे धीरे, क्योंकि क्या है कि ये कैनाल की भी लेवल धीरे धीरे घटते जा रही है. नाउ यू हैव टू बिट विजुअलाइज द थिंग्स, यानी कंटूर, एक्चुअली ग्राउंड और कैनाल का सेक्शन, है ना. हम आगे में और फोटोग्राफ के माध्यम से भी समझते जाएंगे. तो ये कैनाल का सेक्शन तो फिक्स्ड है कि कैनाल की डेप्थ फिक्स है, बॉटम विड्थ, टॉप विड्थ फिक्स है, क्योंकि उसको उतना डिस्चार्ज ले जाना है. फॉर दैट डिस्चार्ज द कैनाल इज डिजाइंड ट्रेपेजॉइडल. सो द सेक्शन ऑफ द कैनाल इज फिक्स्ड, but it has to pass through different ground levels, means different topography of the ground. कहीं ग्राउंड ऊंचा है, कहीं नीचा है. तो ये जो कंटूर कैनाल है, ये जनरली हम जो अलाइन करते हैं, ये एक वी अलाइन और वी ले दैट कैनाल अकॉर्डिंग टू कंटूर्स ऑन द ग्राउंड. यानी जनरल जैसे कैनाल का बेड लेवल फॉल होते जाती है धीरे धीरे, तो हम क्या करते हैं, इसको हाइयर कंटूर से, जैसे 100 के कंटूर से निकलना चालू हो गया, तो ये धीरे धीरे समझो ऐसे हम समझते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड कि द कैनाल बेड लेवल एट द बिगिनिंग इज 100, है ना. 100 का कंटूर है, तो ऐसा सिर्फ समझने के लिए इट इज 100 मीटर्स. बट as it flows along its length, its level will fall. That level will be less than 100. धीरे धीरे आगे जाएगा. 1 in 1000 का स्लोप है, तो 1000 मीटर के बाद में कैनाल बेड लेवल होगी 99, है ना. यदि 99 के लेवल से हम यदि with 99 CBL if we try to pass the canal through 100 contour, then it cannot irrigate higher area than its canal bed level. अपने कैनाल बेड लेवल से ऊंचे लेवल में ये पानी देगा क्या? नहीं देगा. ये 99 के नीचे के लेवल को पानी देगा, है ना. लेकिन हमें तो फिर से स्लोप देना ही है कैनाल को ग्रेविटी के इससे. तो therefore the canal slope goes on in decreasing from 100, 99, 98, 97, and therefore we align the canal. जो कंटूर कैनाल रहता है, अलाइन का मतलब मैंने बताया कि कैनाल को ले करना, वो हम ऐसे फॉलिंग कंटूर में धीरे धीरे देते हैं. सो दैट द मेन पर्पज इज so that the canal should get natural ground, natural slope,
एज वेल एज फॉलिंग ग्राउंड से ही उसका रिलेटेड कैनाल बेड लेवल रहती है। तो इसलिए वो उसके नीचे के ग्राउंड को ही पानी, नीचे के लेवल के इसको ही पानी दे सकेगा, इरिगेट कर सकेगा। दैट इज कॉल्ड एज द कंटूर कैनाल। नाउ द सेकंड इज द वाटरशेड कैनाल। वाटरशेड कैनाल, इसको रीज कैनाल भी बोलते हैं। द अनदर नेम फॉर दिस कैनाल इज रीज, RIDGE, रीज। रीज है ना, जो पहाड़ी के ऊपर की रीज रहती है। जैसे अभी ये यहाँ पे मेरा ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ यूर स्क्रीन देयर आर द कंटूर्स, है ना। जैसे ये राइट साइड में नदी के कंटूर है, वैसे लेफ्ट साइड में कंटूर बताया है वो कॉन्वेक्स में फॉलिंग है। द कंटूर्स आर फॉलिंग इन द कॉन्वेक्स मैनर। यहाँ पे राइट साइड में कॉन्केव मैनर से। तो वो बताते हैं कि ये ग्राउंड जी की टोपोग्राफी जो है वो रिज है, वो यानी पहाड़ी की जो ऊंचाई वाला जो पोर्शन रहता है, जो उतार रहता है, उसको रिज करके बोलते हैं। तो ये रिज है। तो ये रिज से यदि हमारी कैनाल बेड लेवल मेल खाती है, टैली होती है, तो ऐसे वक्त क्या करते हैं, वी टेक द कैनाल ओवर द रिज। रिज के ऊपर से इसको ले जाते हैं कैनाल को। अब इसका फायदा क्या है रिज कैनाल का या वाटरशेड कैनाल का? वाटरशेड यानी आपको सबको मालूम है कैचमेंट एरिया। तो वाटरशेड और रिज कैनाल का फायदा ये है कि दिस कैनाल कैन इरिगेट ऑन बोथ साइड, है ना। ये कैनाल ऊपर से जा रहा है रिज के ऊपर से, तो इसके दोनों साइड में जो ग्राउंड लेवल है वो कैनाल बेड लेवल से नीचे में है। तो इसलिए ये दोनों साइड में करता है। लेकिन कंटूर कैनाल ऐसा कर सकता है क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि कंटूर कैनाल जो है वो इट फॉलोज सर्टन स्पेसिफिक कंटूर्स। इट फॉलोज 100 कंटूर, उसके बाद में हम 98 कंटूर में कैनाल ले जाते हैं, फिर 97, 96 एक्सेट्रा। तो इसलिए ये कैनाल में इट गिव्स द इरिगेशन ऑन वन साइड, दैट इज ऑन द फॉलिंग साइड। जहाँ फॉलिंग कंटूर जो है, टोपोग्राफी जहां उतार की है, स्लोप है, उस साइड में ही ये इरिगेट करता है कंटूर कैनाल। और तीसरा है साइड स्लोप कैनाल। ये यहाँ पे वैसे बताया गया है, व्हेन द टोपोग्राफी इज फ्लैटर, जब एखादी टोपोग्राफी फ्लैट रहती है, बहुत रिज भी नहीं है और बहुत वैली भी नहीं है, तो इन दैट केस वी ट्राई टू टेक द कैनाल अलोंग द फ्लैटर स्लोपिंग टोपोग्राफी। उसको साइड स्लोप कैनाल करके बोलते हैं। एक साइड में फिर से ये कंटूर कैनाल जैसा ही है, इट ऑल्सो इरिगेट्स द लैंड विच इज ऑन द वन साइड। एक साइड का ही कर सकता है, क्योंकि एक साइड में तो ऊंचा है, ऊपर है, ठीक है। ऑन इट्स लोअर साइड इट इरिगेट्स लोअर लेवल साइड। सो दीज आर द टू कैनाल्स, थ्री कैनाल्स, कंटूर कैनाल, वाटरशेड एंड द साइड स्लोप कैनाल। ठीक है, अभी इन दिस कॉन्टेक्स्ट कैनाल अलाइनमेंट हम समझ लेते हैं। थोड़ा सा फास्ट जाते हैं विद द अवेलेबल टाइम, क्योंकि हमारे पास में सिलेबस भी बहुत ज्यादा है। सो द कैनाल हैज टू बी अलाइंड इन सच ए वे। अलाइनमेंट का बार बार मतलब समझ लीजिए कि कैनाल जो हम जमीन पे करने वाले हैं, जैसे रोड बनाते हैं जमीन पे, वैसे कैनाल भी जमीन पे बनाएंगे। जमीन यानी लैंड के ऊपर में खेती को इरिगेट करने के लिए। तो उसको जो हम जमीन पे डालते हैं या जमीन पे काम करवाते हैं कैनाल का, तो उसके पहले हम सर्वे वगैरह करके कंटूर निकालते हैं के प्लान इस पे, और उस पे ये कैनाल को थियोरेटिकली बिछाते हैं। फिर बाद में और सर्वे वगैरह फिर से करते हैं कैनाल का, और फिर से ये अलाइनमेंट में थोड़ी करेक्शन भी करते हैं। लेकिन समझना यह है कि कैनाल हैज टू बी अलाइंड इन सच ए वे दैट इट कवर्स द एंटायर एरिया प्रपोज टू बी इरिगेटेड। यानी पहले कैनाल से अपेक्षा क्या है कि वो कैनाल ने पूरा कमांड एरिया को एज फार एज पॉसिबल पानी देना चाहिए विद द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ, है ना, कम से कम लेंथ में, एज ensures less loss of head due to friction and smaller loss of discharge due to seepage and evaporation, so that additional areas can be brought under cultivation। क्योंकि कैनाल का हेड जो है वो ड्राइविंग हेड क्या है? वो ड्राइविंग हेड है, जो डैम में पानी है उससे वो कैनाल आगे जा रहा है। और कैनाल जैसे जैसे आगे जाता है तो उसके स्लोप के कारण भी उसकी लेवल धीरे धीरे नीचे जाती है।
वो भी एक लॉस ऑफ हेड का कारण है। और दूसरा है फ्रिक्शनल। ये कैनाल ऐसे इसमें से जाता है, स्मूथ सरफेस यदि नहीं रहा कैनाल बाउंड्री का, तो फ्रिक्शन के कारण भी ये हेड लॉस होता है ना। जो ड्राइविंग हेड है कैनाल में से पानी बहने के लिए, दैट हेड इज लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन as well as due to the slope. So due to that, the water, if that continues on a longer length, then the water will lose its head. तो इसलिए उसको शॉर्टेस्ट लेंथ रहना चाहिए। और दूसरा बाकी जो लॉसेस है, जैसे कैनाल की लेंथ लंबी रही उतने एरिया को इरिगेट करने के लिए, तो सीपेज और इवेपोरेशन लॉसेस हो गए। एट द सेम टाइम कैनाल की लेंथ कम रहेगी तो उसकी कॉस्ट जो so thank you. It appears that all of you are there. I just due to some power shortage, this थोड़ा बैटरी डाउन था, ख्याल में नहीं रहा, और लाइन भी गई थी। So we will just want to confirm
So we are into this canal alignment part, just a disruption of 5 minutes or so. So canal has to be aligned. अक्षय ऐकू येत आहे सगळं? सबको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. ठीक है, Yes, ठीक sir. है. हाँ बरं, ठीक आहे, ठीक आहे. सॉरी फॉर द डिसरप्शन. लेट अस कंटिन्यू. So the canal has to be aligned. That alignment principles we try to understand. It should have a shortest possible length, less head loss due to friction and the slope. और जितनी कम लेंथ रहेगी तो उसके सीपेज और इवेपोरेशन लॉसेस जो कैनाल में से है वो कम होंगे और कैनाल की कीमत भी कम रहेगी. अपन ने अभी देखा था 3 टाइप्स ऑफ द कैनाल: रीच कैनाल, कंटूर कैनाल एंड द साइड स्लोप कैनाल. A reach canal or a watershed canal, it is also called as, along the watershed runs for most of its length on the watershed. That is the reach. है ना, दोनों साइड का जो रीच का पोर्शन रहता है वो एखादे वैली को या एखादे नदी को या स्ट्रीम को पानी सप्लाई करता है बरसात का, तो इसलिए इट इज कॉल्ड एज द वाटरशेड. एंड द कैनाल विच आल्सो सप्लाइज द वाटर टू दैट वाटरशेड इज देयरफॉर कॉल्ड एज द वाटरशेड. और ये जनरली रीच के ऊपर से ही कोई वाटरशेड डिवाइड होता है, तो इसलिए इसे रीच कैनाल बोलते हैं ना. धीरे धीरे आप भी थोड़ा सा अपना अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द कंटूर एज वेल एज इट्स विजुअलाइजेशन, यानी हमने कैसे देखना चाहिए. सो रीच कैनाल, इट कमांड्स एरिया ऑन बोथ बैंक्स. कैनाल के दोनों तीर से, यानी रीच के ऊपर से बहता है तो रीच के दोनों साइड में ये पानी सप्लाई करता है इरिगेशन का. Hence, large area can be brought under irrigation or cultivation. Also, ऐसा जो कैनाल रहता है, ऐसे कैनाल जो रीच के ऊपर से कभी भी उसको कोई नदी या नाले क्रॉस नहीं होते, है ना. आपने कभी देखा नहीं होगा कि एक आधी रीच के ऊपर, क्योंकि वो टोपोग्राफी ऐसी रहती है कि वहां पे कोई नो स्ट्रीम क्रॉसेस. सो देयरफॉर नो ड्रेनेज कैन इंटरसेक्ट ए वाटरशेड. तो इसलिए उसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर नहीं आता, तो इसलिए उसके खर्चा भी बचता है कंस्ट्रक्टिंग द क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स. देन द कंटूर कैनाल, ए कैनाल और द चैनल अलाइंड नियरली पैरेलल टू कंटूर्स ऑफ द एरिया इज कॉल्ड एज द कंटूर कैनाल. है ना, ये जैसा मेन कैनाल है, दिस मेन कैनाल इज ए कंटूर कैनाल. ये मेन कैनाल से निकला हुआ कैनाल जो है ये रीच कैनाल है. एक एक जो है इसमें से निकला हुआ साइड कैनाल है, साइड स्लोप कैनाल. अब ये कंटूर कैनाल के क्या, व्हाट इज द स्पेशलिटी? व्हेन द कैनाल टेक्स ऑफ फ्रॉम द रिवर इन ए हिली एरिया, it is not possible to align the canal on the watershed, as the watershed यानी reach, as watershed on the top of the hill may be very high and areas which need irrigation. Sir, sorry to interrupt, sir. Screen दिसत नाही आपली. स्क्रीन दिसत नाही आहे का? बर बर. चला, थँक्यू व्हेरी मच. आहे ना, मध्ये काय झालं की ते सगळं थोडस माझं कनेक्शन. आता दिसते ना स्क्रीन? Yes, sir. हा, थोडं पॉवर फेल्युअर मुळे याचं चार्जिंग संपून गेलं, आता दुसरीकडे लावलं. ठीक आहे, तर आता स्क्रीन दिसेल. तर हा आहे कंटूर कॅनॉल आहे की याच्यामध्ये आपण हा जनरली वी फॉलो द फॉलिंग कंटूर अकॉर्डिंग टू द फॉलिंग कैनाल बेड लेवल. है ना, कैनाल बेड लेवल जैसे जैसे कम होती जाती है वैसे वैसे हम कंटूर के हिसाब से कैनाल को लेके जाते हैं. 100 का कंटूर है, फिर उसके बाद में 99.5 की लेवल है, तो वो कंटूर हम 100 और 99 के 1 मीटर का ही कंटूर इंटरवल से निकालते हैं. लेकिन इन बिटवीन हम इंटरपोलेट करके वो हिसाब से कैनाल बेड लेवल ले जा सकते हैं. तो इसलिए ये वाटरशेड कैनाल जैसे, क्योंकि कैनाल बहुत बार क्या होता है कि जो डैम में से निकलता है तो वो हिल में से निकलता है.
पुन्हा एक वेळ दिसत आहे ना सगळ्यांना? कुठेतरी मध्ये पुन्हा प्रॉब्लेम होऊन गेला होता. अक्षय? दिसत आहे सर. हा चला ठीक आहे. तर असा हा कंटूर कॅनॉल असतो. द कंटूर चोजन, द कंटूर कॅनॉल कॅन इरिगेट ओनली ऑन वन साइड. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कारण कंटूर कॅनॉल हा कंटूरला फॉलो करत असतो, तर त्याच्यामुळे त्याच्या एका बाजूलाच फक्त आपल्याला इरिगेशनचं पाणी देता येतं. ओनली ऑन वन साइड, ॲज द ग्राउंड लेवल ऑन द अदर साइड इज ऑन द हायर लेवल आर क्वाइट हाय. ठीक आहे. द कंटूर कॅनॉल डज नॉट फॉलो द सेम कंटूर ऑल अलॉंग. एकच कंटूरला हा फॉलो करत नाही, कारण की सीबीएल फॉल होत राहते. त्याच्यामुळे तो आता कंटूरला फॉलो करत नाही, म्हणजे पुन्हा कंटूर रिप्रेझेंट्स द ग्राउंड ऑर द टोपोग्राफी, हे समजत जायचं. तर ग्राउंडला उतार असतो आणि कॅनॉल बेड लेव्हल उतारात असते नेहमी. कॅनॉल बेड लेव्हल कमी कमी होत जाते उतार असल्यामुळे. तर त्याच्यामुळे त्या कॅनॉलला सुद्धा कमीत कमी खोदाई आणि कमीत कमी भराई होण्यासाठी वी हॅव टू फॉलो द फॉलिंग कंटूर है ना. ग्राउंड कंटूर रिप्रेझेंट्स द ग्राउंड टोपोग्राफी. Okay, the contour canal does not follow the same contour all along. To enable the water to flow by gravity, some surface slope is given. The rate at which canal alignment leaves one contour and takes another depends upon its surface slope or the slope of the canal. It is usual in highly undulated tracks. है ना. एखादे बार हमको ऐसा कोई हर वक्त ही मस्त स्लोपिंग कंटूर मिलेंगे ऐसा नहीं है. बीच में उतार बीच में एखादा नाला आ सकता है, नदी आ सकती है, या बीच में एखादी छोटी सी पहाड़ी भी आ सकती है. कंटूर हर वक्त ग्राउंड कोई सरीका थोड़ी रहता है टोपोग्राफी. सो ऐसे इसमें इन सच केस इन हाईली अनड्यूलेटेड ट्रैक्स टू कैरी द कैनॉल और द चैनल इन डीप कटिंग एरियाज. अब डीप कटिंग यानी खोदाई के, इसमें डीप कटिंग अक्रॉस द रीजेस. यानी एखादे बार ऐसा होता है, जैसे बहुत बार हमारा रेलवे का या रोड क्या है, पहाड़ी में से जाते वक्त हम टनल में से ले जाते हैं, क्योंकि क्या है द रोड लेवल इज क्वाइट बिलो देन द ग्राउंड लेवल, तो इसलिए हमें टनल में से ले जाना पड़ता है. तो वैसे कैनाल को भी एक आधी रीज आ सकती है, पहाड़ी आ सकती है, तो उसमें आइदर इनटू द टनल और बाय डीप कटिंग खोदाई करके द कैनाल इज टू बी टेकन और स्पर्स एंड इन हाई एम्बैंकमेंट्स. यानी एखादे बार अभी आप धीरे धीरे विजुअलाइज करते जाइए कि जैसे कैनाल बहुत वैली में से जा रहा है, एखादी बहुत बड़ी नदी है या एखादा नाला क्रॉस कर रहा है ना. कैनाल है वो रोड जैसा ही है. एक जगह से दूसरे जगह यदि पानी ले जाना है तो आपको यू मे क्रॉस दी वेरियस ऑब्स्ट्रक्शंस like the ridges, like the nalas, like the rivers, like the roads, like the railways, है ना. जैसे रोड क्रॉस होता है तो बहुत सारे नदी नाले रेलवे सबको क्रॉस करते जाता है पहाड़ी में से, वैसे कैनाल भी है. ऑन द कॉन्ट्ररी कैनाल को तो क्या है कि बेड लेवल मेंटेन करना है, पानी एक जगह से दूसरी जगह बहने के लिए. सो देन जब वैली में से जाता है तो कैनाल को भराई से करते जाना पड़ता है, एम्बैंकमेंट. क्योंकि कैनाल बेड लेवल तो वही है, लेकिन ग्राउंड लेवल नीचे गया अभी वैली रहने के कारण. तो अभी वो कैनाल बेड लेवल मेंटेन करने के लिए नीचे से हमें माटी से भरना पड़ेगा या एखादा ब्रिज देना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द अननेसेसरी लेंथ ऑफ द चैनल इन लॉन्ग डिटूर्स. नहीं तो फिर बहुत घुमा के ले जाना पड़ेगा तो लंबाई बढ़ेगी. तो लॉन्ग डिटूर्स एंड शार्प कर्व्स इन अलाइनमेंट, है ना. ठीक है, थोड़े से शॉर्ट पीरियड में काफी चीजें हम पढ़ रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड विजुअलाइज, बट अगेन इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एज आई टोल्ड यू. नाउ द साइड स्लोप चैनल. अभी हमने रिच कैनाल या चैनल समझ लिया, हमने क्या कंटूर कैनाल थोड़ा बहुत समझ लिया, और अभी साइड स्लोप कैनाल अगेन बेस्ड ऑन द कंटूर्स एंड द टोपोग्राफी. It is a channel aligned roughly at right angles to the contours of the country and is neither on the watershed यानी रीच में नहीं है, नॉर इन वैली. जैसे फ्लैटर कंटूर है तो ऐसे फ्लैटर कंटूर में द कैनाल इज टेकन परपेंडिकुलर टू द कंटूर. परपेंडिकुलर टू कंटूर लिया है क्या, ग्राउंड भी फॉलिंग है, ग्राउंड में उतार है, और
the canal also has got the slope. So in that case, we need very less cutting as well as we need very less banking. So such a channel may be roughly parallel to the natural drainage of the country. ऐसा एखादे नदी या नाले को जनरली पैरेलल जाता है एंड हेंस इट डज नॉट इंटरसेप्ट एनी सीडी वर्क्स क्रॉस ड्रेनेज, यानी रीज में जैसा कोई स्ट्रक्चर आने के चांसेस बहुत कम है नदी नाला क्रॉस होने के, वैसे साइड स्लोप जो कैनाल रहता है उसको भी ये जो है स्ट्रीम्स वगैरह कोई क्रॉस होने के चांसेस बहुत कम है ड्यू टू द टोपोग्राफी. However, it has very steep bed slope since the direction of the steepest slope of the ground is at right angles to the contour. ठीक है, फिर से आपको समझने के लिए मैंने एक ऐसा ही जिसको अपन क्या बोलेंगे सैटेलाइट फोटोग्राफ आपको बताया है, ऊपर से लिया हुआ. So here all the contour banks are there, means it is a ground on which the irrigation is done, but it is related to our contours. So this contour banks related the contour shows the contours. There is one dam. ये डैम से जैसे यहाँ से कैनाल निकला है, ये एक्चुअल है, हाँ, इट इज द सैटेलाइट फोटोग्राफ. एज वेल एज देयर इज अनदर डैम, ये डैम से भी ऐसा कंटूर ऐसा कैनाल निकला है. सो यू कैन सी हाउ द कैनाल फॉलोज इन सच केस, जैसे रीच कैनाल जैसा दिख रहा है. तो शुरू का जो है साइड स्लोप कैनाल है, फिर इट फॉलोज द रीच, अगेन इट हैज मूव्ड फॉरवर्ड. Just tried to show you now the general considerations for a canal alignment. The alignment of the canal should ensure the most economical way of distributing water, high command, minimum number of cross drainage works, है ना. अब ये सीडी वर्क आगे में हम और पढ़ेंगे. The works or the structures which cross the drainage, drainage यानी नदी या नाला, तो उसको क्रॉस ड्रेनेज वर्क करके बोलते हैं. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर. द कैनाल मस्ट हैव मिनिमम क्रॉस ड्रेनेज वर्क, क्योंकि उसके ऊपर खर्चा बहुत होता है. द अलाइनमेंट ऑफ कैनाल ऑन वाटरशेड बीइंग द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड इज प्रेफर्ड. रिज कैनाल जो रहता है वो बहुत अच्छा है, तो इसलिए उसको हम प्रेफर करते हैं कैनाल अलाइनमेंट डालते वक्त. एज ए जनरल रूल, वाटरशेड लाइंग इन कमांड should be occupied by distributary. आगे में हम पढ़ेंगे, अभी कैनाल, मेन कैनाल, डिस्ट्रीब्यूटरी हमने पढ़ाई है, ब्रांच कैनाल वगैरह. तो कंटूर कैनाल यदि मेन कैनाल है तो उसके जो ब्रांच कैनाल या डिस्ट्रीब्यूटरी जो है, दे शुड बी एज फार एज पॉसिबल मस्ट गो अलोंग द रीजेस और द वाटरशेड. ऐसा कहने का मतलब है ना. दो वी आर मूविंग बिट फास्ट, समझने को थोड़ी तकलीफ हो रही होगी, लेकिन इंटरेस्टिंग है, थोड़ा विजुअलाइज करते हुए समझते जाइए. द लेंथ ऑफ द मेन कैनाल फ्रॉम पॉइंट वेयर इट टेक्स ऑफ फ्रॉम द रिवर टू ए पॉइंट वेयर इट माउंट्स ऑन ए वाटरशेड शुड बी मिनिमम. ठीक है, मेन कैनाल की लंबाई कम से कम रहना चाहिए. द कंटूर अलाइनमेंट शुड बी चेंज्ड दिस वे और दैट वे इन ऑर्डर टू रिड्यूस नंबर ऑफ द सीडी वर्क्स. है ना, कैनाल जब डालते हैं तो कंटूर अलाइनमेंट हम थोड़ी कैनाल के जो हमारी मिनिमम सीडी वर्क रहे, इसलिए दोनों साइड में शिफ्ट कर सकते हैं. ये थोड़ा आपका प्रैक्टिस का ये है, जब आप एक्चुअल काम करेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि हम सीडी वर्क कैसे कम से कम कर सकते हैं. द अलाइनमेंट शुड अवॉइड विलेजेस, है ना, नहीं तो अभी 2 पॉइंट जोड़ना है तो कोई खेड़े में से थोड़ी हम ले जाएंगे, एक आधे गाँव में से, है ना. द अलाइनमेंट शुड अवॉइड विलेजेस, विलेजेस के बाजू से ही ले जाना पड़ेगा. एज फार एज पॉसिबल शुड अवॉइड द रोड्स, कार ट्रैक्स, क्रीमेशन प्लेसेस, है ना, स्मशान घाट जिसको बोलते हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, मंदिर वंदिर जो भी है, मंदिर मस्जिद, उसके भी ऊपर से नहीं ले जाना चाहिए. एंड अदर वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज. इट शुड पास थ्रू द बैलेंस डेप्थ ऑफ कटिंग. ये अभी हम आगे में बैलेंस डेप्थ मैंने आपको शुरू में बोला था. बैलेंस डेप्थ ऑफ कटिंग मीन्स कैनाल जब अलाइन करते हैं तब वी मस्ट थिंक ऑफ द कैनाल बेड लेवल एज वेल एज द ग्राउंड लेवल, है ना. दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. कैनाल बेड लेवल यदि नीचे है और ग्राउंड लेवल ऊपर है तो इसका मतलब इतना कैनाल हमें खोदना पड़ेगा. द डिस्टेंस बिटवीन द कैनाल बेड लेवल एंड ग्राउंड लेवल, जिसको डेप्थ ऑफ कटिंग करके बोलते हैं, दैट वी हैव टू एक्सकवेट.
और एक आधे बार अब ये कैनाल बेड लेवल रहती है और कैनाल में से जो पानी बहता है वो मैक्सिमम डेप्थ रहती है, उसको फुल सप्लाई लेवल करके बोलते हैं, और उसके ऊपर थोड़ा फ्री बोर्ड रहता है, उसको उसके वो लेवल जो है उसको टॉप बैंक लेवल करके बोलते हैं। तो अभी दो चीजें ध्यान में रखिए, सीबीएल एंड द टॉप बैंक लेवल, इसके बीच में कैनाल रहता है, डेप्थ ऑफ द कैनाल। तो यदि ये टॉप बैंक लेवल ग्राउंड लेवल के ऊपर में है, इफ दिस टीबीएल इज अबव द ग्राउंड लेवल एंड सीबीएल इज below the ground level, then we must align the canal in such a way that the quantity of excavation, जो खोदाई की क्वांटिटी है, वो हम भराई में यूज कर सकते हैं बैंकिंग में। जैसे मैंने आपको बताया कि सीबीएल तो ग्राउंड के नीचे है लेकिन टीबीएल ग्राउंड के ऊपर है ना, ये धीरे धीरे समझ में आएगा। तो उसमें क्या ऐसा जो रहता है, क्योंकि उस जिसमें जितनी खोदाई की क्वांटिटी है, दैट क्वांटिटी इज टू बी यूज्ड इन बैंकिंग, देन इट इज कॉल्ड एज द बैलेंसिंग डेप्थ। व्हाई इट इज डन? क्योंकि बैंकिंग करने के लिए, भराई करने के लिए कहीं से तो भी बाहर से मट्टी लाएंगे, तो हमें सॉइल लाएंगे, तो वी विल नीड एडिशनल कॉस्ट। if we use the same excavation quantity in banking, then we will save lot of the cost। ठीक है, we as a engineer। तो इसलिए कैनाल अलाइनमेंट जो यहाँ पे वर्ड है, बैलेंस डेप्थ ऑफ कटिंग से ले जाना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कटिंग की क्वांटिटी should be used in the banking quantity, so it should involve minimum depth of cutting or minimum height of banking। ठीक है, दो वर्ड है अभी, डेप्थ ऑफ कटिंग एंड हाइट ऑफ बैंकिंग। डेप्थ ऑफ फिलिंग नहीं बोला, हाइट ऑफ फिलिंग और हाइट ऑफ बैंकिंग, एंड हाइट ऑफ कटिंग नहीं बोला, डेप्थ ऑफ कटिंग बोला। ठीक है, देयरफॉर टू वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। द नंबर ऑफ किंक्स एंड एक्यूट कर्व शुड बी मिनिमम। कैनाल को कम से कम कर्व देना चाहिए। किंग्स यानी कर्व, जो शार्प कर्व रहते हैं, है ना, बिकॉज द हाइड्रोलिक्स इज देयर, इट इरोड्स द कैनाल and the losses of the head are also there। Ideal length of the canal should be minimum and branches etc should be economically planned। Alignment should not be made as far as possible in rocky, brackish or cracked strata because it will take more cost। Though the maintenance of field channel is responsibility of the farmer, now regarding the field channel, they should be laid along the field boundaries। हमारे खेत के जो धूरे रहते हैं, है ना, हमारे मराठी में धूरा करके बोलते हैं बाउंड्री को। द कैनाल शुड बी फील्ड कैनाल, जो खेती को पानी देने वाला है, दैट शुड नॉट बी, खेत के बीच में से कभी नहीं लेना चाहिए, काश्तकार का नुकसान होता है। कैनाल जब जाता है तो उसकी जमीन जाती है उसमें। सो देयरफॉर इफ वी टेक इट अलोंग द बाउंड्री, देन इट सेव्स द लैंड ऑफ ऑल द फार्मर्स। They should be capable of supplying sufficient water to the tail end, आखिरी तक के पानी जाना चाहिए। मैंने आपको बोला था हेड और टेल। सेपरेट फील्ड चैनल शुड बी प्रोवाइडेड फॉर हाई एंड लो लैंड्स। सेपरेट फील्ड चैनल फॉर द हाई एंड लो लैंड्स, जो जमीन ऊपर नीचे है उसको भी पानी मिलना चाहिए। द फील्ड चैनल शुड नॉट पास थ्रू रॉकी, ब्रैकिश और क्रैक्ड स्ट्राटा। ठीक है, फिर से एक अच्छा आपको बताने के लिए, जैसे ये रिवर है इधर और एक दूसरी रिवर है, तो नेचुरली दो रिवर के बीच में एक रीज होगा, है ना। धीरे धीरे टोपोग्राफी जमीन की कैसी रहती है आंखों के सामने रही, तो ऐसा रीज है, दिस रीज डिवाइड्स बोथ द रिवर। सो दिस रीज डिवाइड्स टू कैचमेंट्स। ठीक है, तो ये रीच के ये साइड में जो ये कैनाल जैसे ये रिवर से निकला एंड इट इज ब्रॉट अलोंग द रीच, so it gives the water on both sides according to the ground level। okay, so this I mean to say based on the, अब एक L सेक्शन करके बोलते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द कैनाल। ठीक है, ये थोड़ा सा और इसमें हम फास्ट थोड़े समझते जाते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि वंस वी प्लॉट द कैनाल अलाइनमेंट ऑन द शीट, ड्राइंग शीट के ऊपर में, जिसके ऊपर में पहले हमने वी हैव लर्नड अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ द इंजीनियरिंग सर्वेस, है ना। एक हमने शुरू में रिजर्वायर प्लानिंग में इंजीनियरिंग सर्वेस पढ़ा है।
तो वैसे हमने कमांड एरिया का पूरा सर्वे करने के बाद में उसके कंटूर वो शीट के ऊपर में प्लॉट किए, है ना। बहुत बड़ा सर्वे रहता है, यानी जितना कमांड एरिया, जैसे गोसेखुर्द का कैनाल है, इट इज 100 किलोमीटर लॉन्ग आरबीसी। तो कितना बड़ा सर्वे करना पड़ा होगा आप सोचिए। तो पहले वो सर्वे करके और विद द अवेलेबल टोपोग्राफिक शीट, उसको टोपो शीट बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्वे डिपार्टमेंट जो है उसके पास रेडीमेड शीट है, बहुत सारे कंटूर प्लॉट किए हुए हर एरिया के है, पूरे भारतवर्ष के सर्वे किया हुआ है, और उसको टोपो शीट करके बोलते हैं। तो वो टोपो शीट भी लेते हैं हम, और वी इंजीनियर सर्वे द साइट एंड वी प्लॉट द कंटूर एंड वी ले द अलाइनमेंट। टेम्पररी अलाइनमेंट हम क्या करते हैं, वो शीट के ऊपर में ड्रॉ करते हैं, और फिर वो अलाइनमेंट के ऊपर में वी परफॉर्म द सर्वे। जो अलाइनमेंट या लाइन हमने शीट के ऊपर ड्रॉ किया है वो जमीन पे ड्रॉ करके, क्योंकि हमारे पास में मैप रहता है, लोकेशन हमें मालूम रहता है, सो वी ड्रॉ द लाइन विद द हेल्प ऑफ द लाइन, चूने की रेशा वगैरह मार के हम सेंटर लाइन, जैसा आपने सर्वे किया होगा रोड का वगैरह या कौन सा भी आपके कॉलेज में, तो वैसे ही लाइन मार्क करते हैं कैनाल की, और उसके लेवल्स लेते हैं, सेंटर लेवल्स, और वो लेवल को प्लॉट करते हैं ग्राउंड लेवल को। ये जैसे यहाँ बताया गया है ना, ऊपर में जो लेवल्स है दे आर द ग्राउंड लेवल्स, और जो हमने कैनाल की बेड लेवल फिक्स किए हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द डैम एंड फर्दर डिपेंडिंग ऑन द स्लोप ऑफ द कैनाल टू बी गिवन फ्रॉम इट्स डिस्चार्ज पॉइंट ऑफ व्यू एंड अवेलेबल ग्राउंड लेवल पॉइंट ऑफ व्यू, वो कैनाल बेड लेवल भी इसके ऊपर हम ड्रॉ करते हैं। यानी जो लेंथ के जिसके हमने लेवल्स लिया है उसके ऊपर कैनाल बेड लेवल भी ड्रॉ करते हैं। ऐसा जो हम सेक्शन प्लॉट करते हैं उसको लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन करके बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कैनाल सर्वे में। इट इज कॉल्ड एज द लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द कैनाल और एल सेक्शन ऑफ द कैनाल। ऐसा रोड का भी हम करते हैं, वी डू द सेम थिंग फॉर द रोड। ठीक है। कैनाल का, क्योंकि कैनाल का इंपॉर्टेंट क्या है कि कैनाल बेड लेवल फॉल्स अलोंग इट्स लेंथ। प्लीज ट्राई टू बी बीट फास्ट व्हाइल आई स्पीक। मैं बताता हूं क्योंकि अच्छी चीजें आप समझ लीजिए। तो ये जैसा आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे ग्राउंड लेवल मार्क है ना, एल सेक्शन कैसा प्लॉट करते हैं मुझे ऐसा लगता है आपको मालूम है। जो लेंथ है 0, 20, 40 ऑल अलोंग द लेंथ दैट हैज बीन मार्क्ड, वो लेंथ शीट के ऊपर में विथ सम स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30 मीटर वगैरह ऐसा कुछ लेते हैं, वो स्केल से प्लॉट करते हैं। लेंथ रिड्यूस लेवल ऑफ द ग्राउंड है ना, आपने सर्वे करने के बाद में जैसे 0 पॉइंट है तो 0 पॉइंट की रिड्यूस लेवल है 167.2, 40 की है 157 है ना। तो ये दीज आर द ग्राउंड लेवल्स। और यहाँ पे वर्टिकल सेक्शन भी वो स्केल से या दूसरे स्केल से, एक आता हॉरिजॉन्टल स्केल 1/100 या 1/30 एंड वर्टिकल स्केल 1:1, 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर ऐसा रहता है ना। हॉरिजॉन्टल 1 मीटर इज इक्वल टू 30 मीटर। ऐसे स्केल से ये लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन प्लॉट करते हैं। तो उसमें फिर ग्राउंड लेवल आ गया, रिड्यूस लेवल ऑफ द प्रपोज बेड यानी कैनाल बेड लेवल, दिस विल बी यूनिफॉर्मली फॉलिंग। ठीक है, जो भी कैनाल का स्लोप है उस हिसाब से कैनाल बेड लेवल है। और ये कैनाल बेड लेवल यदि ग्राउंड लेवल के नीचे है, if this canal level bed level is below the ground level means there is definitely the cutting, कैनाल की खोदाई है जैसे यहाँ दिख रहा है, that is called as the depth of cutting। तो उसको डिगिंग या डेप्थ ऑफ कटिंग करके बोलते हैं, वो भी हम निकालते हैं, कैलकुलेटर से वर्कआउट करते हैं, आजकल तो कंप्यूटर प्रोग्राम ही है। और उसी हिसाब से यदि एक आधे बार जैसे यहाँ पे नाला दिख रहा होगा आपके ऊपर में मेरा कर्सर है, तो यहाँ पे ग्राउंड लेवल इज बिलो द कैनाल बेड लेवल। कैनाल बेड लेवल जो प्रपोज्ड है उसके नीचे ग्राउंड लेवल है ना। ग्राउंड लेवल तो हमारे हाथ में नहीं है, दैट इज द नेचुरल ग्राउंड लेवल ओवर विच वी आर टेकिंग द कैनाल। लेकिन कैनाल बेड लेवल इज डिसाइडेड बाय अस बाय द स्लोप।
तो यदि कैनाल बेड लेवल ग्राउंड लेवल के ऊपर में, इसका मतलब इतने पोर्शन में कैनाल ऊपर है, ग्राउंड नीचे है, तो हमें माटी की भराई करनी पड़ेगी या एक आधा ब्रिज देना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं हाइट ऑफ फिलिंग और हाइट ऑफ बैंकिंग। सो डेप्थ ऑफ कटिंग, कटिंग डेप्थ एंड द फिलिंग हाइट, ये दोनों निकाला जाता है। ठीक है। और बाकी फिर और डिटेल्स है कि कैनाल को स्लोप को कहाँ फॉल देना वगैरह, दैट डिपेंड्स ऑन द ग्राउंड, दैट इज मोर इन डिटेल, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द अलाइनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, विच इज कॉल्ड एज द लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन, है ना। अभी आखिरी में हम वी विल गो ऑन दिस बैलेंसिंग डेप्थ एंड वी विल कंक्लूड हियर। मैंने आपको बताया था, आप फिर से विजुअलाइज कीजिए कि ये कैनाल का सेक्शन है, ट्रेपेजॉइडल सेक्शन। ठीक है, ऑन योर राइट साइड ऑफ योर स्क्रीन यू कैन सी द कैनाल सेक्शन। हियर इट इज शोन बाय द हैच्ड, है ना। यहाँ पे राइट और लेफ्ट में कैनाल के इससे ये ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल। ठीक है, ऑन द राइट साइड एंड ऑन द लेफ्ट साइड इट इज शोन एज द ग्राउंड लेवल, एंड एट द बॉटम इट इज शोन एज द कैनाल बेड लेवल। ठीक है, बेड विड्थ बी वगैरह है। तो you can see the ground level is above the canal bed level और canal bed level is below the ground level। यानी यहाँ पे कटिंग है, कैनाल को खोदना पड़ेगा। लेकिन कैनाल के जो टॉप बैंक लेवल है टीबीएल, दैट इज अबोव द ग्राउंड लेवल, है ना। कैनाल की जो टीबीएल है दैट इज अबोव द ग्राउंड लेवल। सो इतने पोर्शन में, क्योंकि टीबीएल तक के तो कैनाल करना ही है हमें, एफएसएल है ना, फुल सप्लाई लेवल, कहीं तो भी लॉन्ग फॉर्म आप नोटबुक में लिखते जाइए। Full supply level of the canal, which is I will again explain you later, it depends on the discharge to be taken through the canal, open channel flow है ये। तो full supply level और उसके ऊपर में फ्री बोर्ड, तो दोनों का the full supply depth D plus free board will bring the top bank level और top bank depth you can say। ठीक है, ये कैपिटल, ये स्मॉल h से बताया है, और स्मॉल d is the full supply depth, h is the top bank level depth or height। So as the remaining part of the canal is in banking, so we try to take the canal in such a way, or we try to maintain the canal bed level in such a way that this quantity of cutting should be equal to quantity of banking as far as possible, है ना। 100% अरिथमेटिकल हम इक्वल नहीं लाएंगे, लेकिन ला सके तो जितना पास में। What, why this is to be done? Because this will save the material to be brought for the filling purpose। बैंकिंग के लिए कहीं से तो भी बाहर से, क्योंकि दूर से मटेरियल लाना तो हमें उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह लगती है। यहाँ कैसा है, यहाँ ही खोदाई किया और मशीन से इधर डाल दिया बाजू में और फिर रोलिंग किया। ठीक है, तो कैनाल सेक्शन ऐसा हम मेंटेन कर सकते हैं। तो ऐसी जो डेप्थ रहती है, the depth at which the canal cutting is equal to canal banking, that depth is called as the balancing depth। okay, so canal section will be economical when earthwork involved, earthwork यानी either cutting or banking, है ना। धीरे धीरे अभी ये वर्ड से आप वाकिफ होते जाइए। involved at a particular section has an equal amount of cut and fill, equal quantity of the cutting and the filling। usually a canal section has a part in cutting and part in filling as shown here। so if the amount of cut is equal to amount of fill, it can be paid for once only, है ना। ये खोदाई के लिए ही पैसे देना पड़ेगा, फिलिंग तो यहाँ से निकाल के बाजू में रखना है। मोर सो द नेसेसिटी ऑफ बोरो पिट, है ना, आगे में और हम पढ़ते जाएंगे बोरो पिट क्या है, स्पॉइल बैंक क्या है, ये इसको अवॉइड कर सकेंगे हम, जिसको खर्चा आता है। सो देयरफॉर फॉर ए गिवन क्रॉस सेक्शन देयर इज ऑलवेज ओनली वन डेप्थ ऑफ कटिंग। very important statement, for given cross section there is only one depth of cutting for which cutting and filling will be equal, cutting quantity, excavation quantity is equal to banking quantity। this depth of cutting is known as balancing depth। and how it is worked out, it is again a mathematical part, geometrical part, कि कटिंग डेप्थ का एरिया निकालिए, बैंकिंग डेप्थ का एरिया निकालिए, है ना, बैंकिंग हाइट का एरिया निकालिए, और दोनों एरिया यदि इक्वेट कर दिया तो जो डेप्थ ऑफ कटिंग आएगी दैट विल बी दी बैलेंसिंग डेप्थ। ठीक है, ये फिर से एक लार्जर स्केल में आपको बताया है।
बैलेंसिंग डेप्थ का एक फॉर एग्जाम में आता है बोला बहुत बार, व्हाट इज बैलेंसिंग डेप्थ एंड राइट द डेरिवेशन फॉर दैट, बट इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी। ये ट्रेपेजॉइडल सेक्शन रहता है कैनाल का, हम और आगे में अच्छे से समझते जाएंगे तो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर व्हाई सच सेक्शंस आर गिवन। कैनाल बेसिकली सर हैज सेड दैट इट मस्ट हैव द ट्रेपेजॉइडल, तो यहाँ पे नीचे ट्रेपेजॉइड है, ऊपर में भी ट्रेपेजॉइड है, लेकिन थोड़ा सा एक बर्म दिया है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, जॉइनिंग दी सॉइल अर्थ ग्राउंड, ठीक है। और ये स्लोप है n:1, एम्बैंकमेंट को है, कटिंग को z:1 है, ठीक है। तो इफ h इज द कटिंग डेप्थ, b इज बेड विड्थ, t इज द टॉप विड्थ ऑफ कैनाल बैंकिंग, canal side slope in filling is n:1, z:1. So from this picture, the depth y, this is the depth y from the ground line and the bed level is calculated. A line roughly parallel to the hydraulic gradient line is drawn on the L section. ये मैं अगले बार आपको समझा दूंगा, अभी सिर्फ इतना बता देता हूं कि एरिया ऑफ कटिंग है ना बी वाई प्लस जेड वाई स्क्वायर है ना, हमारे को वो आपने कहीं तो भी एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में पढ़ा है, डेप्थ ऑफ कटिंग या क्वांटिटी ऑफ कटिंग बैंकिंग कैसे निकालते हैं। सो दैट इज बी इंटू वाई, बी इंटू दिस बैलेंसिंग डेप्थ प्लस जेड वाई स्क्वायर है ना, कुछ नहीं, टॉप विड्थ प्लस बॉटम विड्थ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय द हाइट, बस उससे ही निकालते हैं। सो बी वाई प्लस जेड वाई स्क्वायर, वाई कॉमन निकाला था, बी प्लस जेड, एंड एरिया ऑफ द फिलिंग इन द सेम वे, both are equating area of cutting and filling, and whatever depth you will get from this equation, after solving this equation and putting the various slope values etc, we can find out the y, the balancing depth. So this is in short what I wanted to tell you today. Actually I have to move it further, लेकिन वो बीच में लाइन के प्रॉब्लम के कारण we have to stop here.